Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning, and you will enjoy the offline session as well. Friends, we are discussing chapter number 11, thermal property of matter. And in that chapter, we had discussed about the heat and temperature. We had discussed the liquid thermometer as well as the gas thermometer. The disadvantage of the liquid thermometer is that uh, the liquid thermometer can be used uh, for only that liquid for which it is designed. Uh, you cannot use the same thermometer for the different liquid because different liquid exhibit the different thermal expansion characteristic, and the liquid thermometer is work on the principle of thermal expansion due to the temperature, while a gas thermometer, we had discussed that the gas thermometer can be used for any kind of gas irrespective of the type of gas. And it works in which principle? It works on the principle that if the temperature increases, then the pressure also increases. So by measurement of the pressure, we can measure the temperature. So that was about the gas thermometer. And after that, we had started to discuss the topic called thermal expansion. We also had discussed some example for solid, liquid and gas of the expansion. Now we are going to discuss the question number 8. So what is thermal expansion, and write its type, write its only its type, write only its type. It is not the M, it is its type. So friends, it is our common experience that most substances expand on heating and contract on cooling. A change in the temperature of a body causes a change in its dimensions. The increase in the dimension of the body due to the increase in the temperature is called thermal expansion. We are having a three kind of thermal expansion here. मान लो कि आपके पास कोई लीनियर रोड है, यू हैव अ रोड. अगर आपके पास कोई लीनियर रोड है, तो अगर उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, मान लो कि आपके पास ऐसा कोई रोड है, तो अगर इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? उसके Length. उसके लेंथ में चेंज आएगा. तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज कंसिडर टू बी Linear expansion. लीनियर एक्सपांशन. कि आपके पास एक डिस्क है, ऐसा कोई डिस्क आपके पास पड़ा हुआ है, और अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भैया? इसका एरिया Area बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो उसका एरिया इंक्रीज होगा, इसका एरिया इंक्रीज होगा. सो दैट इज कॉल्ड दी एक्सपांशन Area. या एरिया एक्सपांशन. एंड मान लो कि आपके पास कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो कि आपके पास कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, और अब उसका टेम्परेचर अगर आप रेज करोगे तो क्या होगा भैया? उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन. हाँ, उसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब कुछ इंक्रीज होगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड दी वॉल्यूम एक्सपांशन. So three kind of expansion is possible: linear expansion, aerial expansion and volume expansion. अब इसके इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो चीज अब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है. अब तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत है. हाँ, जस्ट फोर्थ क्वेश्चन जो था, जो आइडियल गैस स्टेट, Boils. हाँ बॉयल्स वाला, वो एक प्रिपेयर करना था. और बाकी सब क्वेश्चंस जो अब तक हमने डिस्कस किए थे वो जस्ट फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज द very second question of this chapter you need to prepare. So explain the linear expansion and define coefficient of the linear expansion. Question completely ऐसा पूछेंगे, explain the linear expansion and define
द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप शांति से सुनना, देखना, सोचना, समझना। तो मान लो कि हमारे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है। मान लो कि हमारे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है। लेट इनिशियल लेंथ ऑफ अ रोड of a road suppose due to increase in temperature, change in length, मान लो कि डेल्टा एल है। तो फ्रेंड्स फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा? delta L by L. In length obviously will be is equals to delta L. Is that clear, friends? Yes. Yes, sir. Now experimental study shows that this fractional change in the length is directly proportional to the change in temperature. ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है, मतलब हमको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये जो डेल्टा एल अपॉन एल जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, ये अल्फा जो है ना, K delta T. हाँ, ये जो अल्फा है ना, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। और फाइनली आई गॉट द इक्वेशन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर। आपको आइदर यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स है। इसका न्यूमेरिकल्स के नोट्स अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, यू विल गेटिंग द नोट्स विद इन 1 or 2 days। ओके, अब मुझे है ना ये अल्फा के बारे में बताना है। तो अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन। इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल है उसके टाइप पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। एंड somehow up to some extent it is also depend on the temperature. Up to some extent it is also depend on the temperature. For the small change in temperature it is almost remain independent of a temperature. बट अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा तो अल्फा का वैल्यू चेंज होगा। बट जनरली हम उसको अल्फा को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट अज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। अब मुझे ये अल्फा को डिफाइन करना है, तो कैन आई से इट इज अ डेल्टा एल बाय एल अपॉन डेल्टा टी। Yes. तो डिफाइन इट, चलो इसके ऊपर से डेफिनेशन बताओ। देखो देखो डिनोमिनेटर में जो आता है उसको हम क्या डेफिनेशन बनाते टाइम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, याद है आपको? तो कैन आई डिफाइन द अल्फा इन दिस मैनर, द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस per unit change in temperature. Fractional change in the length of the object per unit change in its temperature is defined as a coefficient of a linear expansion. Coefficient of linear expansion. So that is the definition. What should be the unit of the linear expansion? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? Meet. L delta T. It should be a Celsius inverse or Kelvin inverse.
देखो डेल्टा एल अपॉन एल जो है ना वो तो यूनिटलेस है, फ्रैक्शनल चेंज मतलब लेंथ अपॉन लेंथ तो वो तो यूनिटलेस हो जाएगा, बट न्यूमरेटर में तो टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहीट, बट 1 अपॉन दैट, सो 1 अपॉन टेम्परेचर मतलब सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. Is that clear to you, friends? Everybody clear this topic? Yes. Yes, sir. So this is Yes, what sir. is the concept of the linear expansion. तो अगर आपको इंक्रीमेंट इन द लेंथ फाइंड करना है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, और you can also remember this formula as well, delta L by L is equals to alpha delta T. More precisely, I should say alpha L delta T, where alpha L is the coefficient of linear expansion. Is that clear, friends? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 2 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करना है, इट इज वेरी सिंपल. चलो अब हाँ, the ratio of the fractional change in the length and small change in temperature is called the coefficient of linear expansion. इसका definition यहाँ पे बनाया हुआ है. Next question that is also need to prepare as a 2 marks. Anomalous expansion of water is a blessing for the living organisms in water. Or explain the anomalous expansion of water. Or you can also be asked like that, anomalous expansion of water is the reason why the aquatic animals can survive in the winter also. फ्रेंड्स देखो भगवान ने ये सारा कुछ बनाया हुआ है, एंड यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट कि बहुत समझ के सोच के ये भगवान ने पूरा ये वर्ल्ड बनाया है, पूरा चीज़ उसने बहुत कुछ सोच के बनाया है. जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी का क्या होगा, डिक्रीमेंट होता है. एम आई राइट फ्रेंड्स? जनरली ये होता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करते हो कोई ऑब्जेक्ट का तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डेंसिटी डिक्रीजेस, ऐसा होता है. एंड वाइस वर्सा, अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते हो तो उसका वॉल्यूम भी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, अगर वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा. तो ये जनरल, इट इज अ नॉर्मल एक्सपांशन, दैट इज द नॉर्मली हैपेंड थिंग. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम गेट increases and that correspondent to density decreases. If you reduce the temperature, volume reduces and then correspondent to that density increases. This is a normal expansion rule. अब भगवान ने पानी को, वाटर को एक अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है. तो पानी में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है अप टू 4 सेल्सियस. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज ही होगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, Increase. तो मान लो कि विंटर चल रहा है, अभी विंटर चल रहा है मान लो, एंड यू आर एट द डाल लेक कश्मीर फ्री ऑफ कॉस्ट. आप मान लो कि कश्मीर में हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल लेक के पास, और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ना वो रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट सबसे पहले किसके ऊपर आएगा, वॉल्यूम. नहीं, पानी के कौन से लेयर पे ये एटमॉस्फेयर का इफेक्ट सबसे पहले आएगा, सबसे ऊपर का जो Layer लेयर है पानी का, वहां पे ये इफेक्ट सबसे पहले पहुंचेगा. एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes. यस सर. तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा ना, तो ये जो ऊपर का जो लेयर है ना उसका भी टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने के द्वारा क्या होगा, उसका डेंसिटी बढ़ेगा. एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर. Yes. Yes, sir. तो ये जो ऊपर का जो लेयर है ना उसका डेंसिटी बढ़ गया, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू द अदर लेयर्स, द अपर लेयर पार्ट विल बिकम्स मोर डेंसर, एंड एज इट इज बिकम्स मोर डेंसर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट विल गो इनसाइड. वो डेंस्ड है
तो ज्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट नहीं कर पाएगा, वो ग्रेविटी के द्वारा कहाँ पे चला जाएगा? नीचे। नीचे। मतलब जो ऊपर का जो लेयर जिसका टेम्परेचर कम हो गया है वो अभी नीचे चला जाएगा, और नीचे का ज्यादा टेम्परेचर वाला लेयर जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। अब वापस से ये प्रोसेस रिपीटिंग, ये प्रोसेस वापस से दैट प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। मतलब क्या होगा कि ऊपर के लेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो नीचे जाएगा, नीचे का लेयर ऊपर आएगा, वापस से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो नीचे चला जाएगा, ऐसा होता रहेगा। तो ये पूरे पूरे ओशंस है, जो पूरा लेक है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम? 4 डिग्री। 4 सेल्सियस। मान लो कि यहाँ पे बार के साइड 4 सेल्सियस है, तो दैट इज अंडरस्टूड। इसको एक्चुअली इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ थर्मल कन्वेक्शन। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ऊपर नीचे होने का, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल कन्वेक्शन। हाँ, उसको थर्मल कन्वेक्शन बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल कन्वेक्शन, इट इज अ नेचुरल थर्मल कन्वेक्शन। ये ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेंसिटी पूरा लेयर ऊपर नीचे होता है। बट पूरे ये लेक का टेम्परेचर क्या हो गया अभी? 4 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है, अभी पिक्चर में थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब ट्विस्ट ये है कि नाउ बियॉन्ड दी 4 सेल्सियस, beyond 4 Celsius, now still the temperature of the atmosphere reduces. Then the God had given a water a special characteristic. God had given the special characteristic to the water, and that characteristic is now if the temperature of water reduce beyond 4 Celsius, then in place of decrement in the volume does increases. This is a special characteristic given by the God to the water. तो 4 सेल्सियस तक तो क्या होगा कि जो नॉर्मल एक्सपांशन लो है ना वो लगेगा वाटर के लिए भी, बट बियॉन्ड 4 सेल्सियस इफ यू स्टिल फर्दर इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उससे भी ज्यादा आप डिक्रीज करते हो, तो भगवान ने वाटर को एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। अगेंस्ट द रूल है कि भाई अगर टेम्परेचर रिड्यूस होता है बट स्टिल यहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस होने के बदले इंक्रीज होता है, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ एनोमलस एक्सपांशन। expansion of डेंसिटी भी डिक्रीज होगी ना? हाँ, and because of that the density is going to be reduces in place of increment. So this phenomenon is known as a anomalous expansion of water. It is against the law. It is against the law. There is a special characteristic given by the God to the water. Is that clear, friends? तो अब क्या होगा? अब माइनस में भी हाँ, ऐसा ही होगा। क्या बोल रहे हो? 0 to 4 तक ही होगा ना, ऐसा माइनस में ऐसा नहीं होगा ना? ना, माइनस में तो वाटर ही नहीं रहेगा ना, वो 0 सेल्सियस के बाद वो वाटर के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, तो फिर आप उसको वाटर बोल ही नहीं सकते। ओके ओके सर। यस सर। हाँ, तो अब क्या होगा, अगर 4 सेल्सियस से आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम होगा तो ऊपर का जो लेयर है ना उसका टेम्परेचर भी कम तो होगा ही, बट उसका डेंसिटी अब कैसा रहेगा? ऊपर के लेयर का कम रहेगा। Low. तो वो कम रहेगा तो वो अंदर चला जाएगा या फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा। ऊपर का लेयर अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर के लेयर का टेम्परेचर रिड्यूस होके मान लो कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में 0 सेल्सियस हो जाएगा, तो ऊपर के लेयर का टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा, बट वो नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे का तो टेम्परेचर कितना रहेगा? कितना था उतना? 4 डिग्री। वो तो 4 ही रहेगा, और ऊपर का लेयर तो ऊपर ही रहेगा। Degree. assume that the atmospheric temperature is less than the 0 सेल्सियस, वो माइनस में चला गया मान लो, तो ऊपर के लेयर में क्या फॉर्म हो जाएगा अभी? आइस। आइस फॉर्म हो जाएगा, बट वो नीचे नहीं जाएगा। water, नीचे नहीं, वो आइस का लेयर जो है वो नीचे नहीं जाएगा। तो कभी कभी आपने पिक्चर में या कहीं पे देखा होगा कि विंटर के सीजन में कुछ जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं वहां पे जो ओशंस होता है, वहां पे जो लेक होता है, तो ऊपर का जो लेयर है वो पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट अंदर की साइड तो क्या रहता है? पानी। Pani. पानी ही रहता है। इज दैट क्लियर टू यू? यस। यस सर। हाँ, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे इन द विंटर if the temperature goes decreasing and suppose it decreases beyond the 4 Celsius, then the uppermost layer will gets converted into the ice, but it will not be getting inside to the water.
So the lower part of the water, lower part of the lake will be remains at the 4 Celsius and remains in the water form. तो अंदर जो aquatic animal है उसको कोई problem नहीं आएगा, तो they will be able to survive because अंदर तो 4 Celsius ही temperature है और वहां पे आइस नहीं बन रहा है. बट सोचो अगर भगवान ने पानी को ये कैरेक्टरिस्टिक, ये एनामोलस एक्सपांशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया होता और ये जो ऊपर जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो 4 सेल्सियस तक का वो रिपीट होता रहता, तो क्या होता सोचो. तो पूरा वाटर ही नहीं होता सर. आइस हो तो जाता पूरा लेक किस में कन्वर्ट हो जाता? आइस में. आइस में. आइस में कन्वर्ट हो जाता. एंड एक्वाटिक एनिमल इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस विल नॉट बी गोइंग टू, दे आर गोइंग टू बी फ्रीज एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. Yes, sir. सो फ्रेंड्स, अब सोचो भगवान ने कितना जबरदस्त बनाया है. देखो जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि भगवान ने जो किया है वो हमारी समझ से परे है. हम जो सोच सकते हैं उससे भी वो आगे है. एकदम झकास चीज यहाँ पे भगवान ने बनाया है. इज दैट क्लियर टू यू? सो यस सर. Yes, नाउ वी कैन अंडरस्टूड दैट नाउ वी कैन sir. that anomalous expansion is helpful to survive the aquatic animals. Is that clear to you, friends? यस सर. तो अब मुझे सोच के बताओ कि at which temperature the density of the water is maximum? 4. 4 degrees 4 Celsius. 4 सेल्सियस पे जो वाटर का डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड. याद है आपको रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन हम कैसे बताते थे? अब आपको पता चला वो रिलेटिव डेंसिटी. Yes, sir. आपको शायद याद होगा कि भाई कोई भी मटेरियल का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी एट विच सेल्सियस? एट 4 सेल्सियस. 4 degree. तो अब पता चला वो रिलेटिव डेंसिटी में ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा होता है. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. At 4 degrees Celsius, the density of the water becomes maximum. Is that clear, friends? यस सर. क्या ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया, फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. यस सर. तो नाउ देखो भगवान ने पानी को ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है so that they are able to aquatic animals are able to survive in the winter as well because of this anomalous expansion. You can read this topic, it is a very interesting. Is that clear, friends? क्वेश्चन नंबर 9 आपको 2 मार्क्स में करना है, 10 भी आपको 2 मार्क्स में करना है, 11 इज अ इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन. ये 11th क्वेश्चन जो है ना वो आईएमपी है. आईएमपी Sir. बोलो. Sir, last question, 9th question में जो डेल्टा एल बाय एल हमने किया अब बोलो. वो बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो. हाँ, उसको स्ट्रेन भी बोल सकते हैं ना, डेल्टा नहीं यहाँ पे एल बाय एल को. हाँ एग्जैक्टली. बट यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्ट्रेन जब आप बोलते हो ना तो इसका मतलब कि यू हैड प्रोवाइडेड सम मैकेनिकल फोर्स एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, by application of that deforming force the change in the length is occur. But here the change in the length is not occurring due to that given mechanical force. Here the change in length is occur because of the change in temperature. So the thing, Yes, sir. but we cannot say it is a strain. Is that clear to you? Because when Yes, sir. the word Yes, sir. strain, when you speak the word strain, it is related with the mechanical force, deforming force. Is that clear? Here we are not providing any deforming force. Is that clear to you? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So जैसे question is that question number 11, it is important as I had told you. Question is that obtain the coefficient of the volume expansion for the ideal gas. तो आइडियल गैस के लिए आपको वॉल्यूम एक्सपांशन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन. 100% ये पूछने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर. बट पहले तो जैसे लीनियर एक्सपांशन को हमने डिफाइन किया ऐसे ही हम सरफेस एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए भी पहले डेफिनेशन हम पहले बना देते हैं. तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी. एम आई राइट, फ्रेंड्स? But alpha L is a
coefficient of the linear expansion. So similarly delta A upon A should be equals to क्या लिखना चाहिए मुझे, अल्फा A डेल्टा T, और यहाँ पे अल्फा A को मुझे क्या बोलना चाहिए,